Hello students, so in the previous lecture we were talking about the sewage treatment plant, and in today's lecture we are going to be talking about microbes that are being used as the bioagents. ठीक है, clear है? So काफ़ी टाइम से we have been using a lot of chemicals, we have been using a lot of pesticides, herbicides, weedicides, and these herbicides, pesticides are what? These are composed of chemicals. और chemicals का तो आपको पता ही है. We have been talking about organic farming. कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए किया जाता है सो दैट द यूज ऑफ केमिकल्स कैन बी रिड्यूस्ड. इन द सेम वे वी आर स्टार्टिंग टू यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज द बायो कंट्रोल एजेंट्स, जिनकी मदद से आप क्या कर सकोगे, आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखोगे जो एग्रीकल्चर पे हार्म कॉज कर सकते हैं. You can use the microbes as the biofertilizer, you can use them to control the pest, you can use them to control the weeds. ठीक है, because now these are living organisms controlling another living factors. तो क्या होगा, केमिकल का यूज काफ़ी कम हो जाएगा और जो क्रॉप्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी फ्रेश, दे आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम केमिकल्स. The whole intention is to grow vegetables, crops, fruits, those are free from chemicals so that we can stay away from biomagnification. है ना, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया जिससे केमिकल के यूज को अपन कम कर सकते हैं, और दूसरा क्या आ गया, माइक्रोब्स आ गए. ठीक है, आई होप बायोमैग्निफिकेशन का मतलब आपको पता है. whenever you go through this video you drop me a definition of biomagnification through WhatsApp. ठीक है, so let's move ahead now. So microbes as biocontrol agents. So यहाँ पे in this lecture we would be talking about several microbes जो क्या करेंगे, they are controlling certain agents which are causing harm to the crops. ठीक है, okay, so microbes as biocontrol agents में biological methods for control of biological methods for control of pest and पैथोजन. ठीक है, सो माइक्रोब्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा टू कंट्रोल व्हाट, टू कंट्रोल द पेस्ट एंड द पैथोजन. एंड दिस कैन बी इन टू वेज. आप कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को या पैथोजन को आप दो तरीके यूज कर सकते हो. आप प्रेडेटर्स को यूज कर सकते हो, या फिर पैरासाइट को यूज कर सकते हो. ठीक है, सो द बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन, प्रेडेटर्स यूज किए जा सकते हैं या फिर पैरासिटिक फॉर्म में आप चीजों को यूज कर सकते हो जो कंट्रोल करेगा किसका, पेस्ट एंड पैथोजन का. ठीक है, नाउ सी एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, है ना. एवरी ऑर्गेनिज्म, आपको पता होगा फूड चेन, एवरी ऑर्गेनिज्म इज playing an important role in the food chain. So if I use a toxic chemical, if I use weedicides or herbicides to kill that particular living organism, तो मैं क्या कर रहा हूँ, I'm disturbing the food chain. ठीक है, so when you talk about microbes as biocontrol agents, so यहाँ पे the whole intention is not to kill the pest or the pathogen because it's a living organism. आप उसे मारोगे नहीं, but आप उसको कंट्रोल में रखोगे. When you use a chemical, what you do is you kill the pest or the pathogen. But when you use a microbe, you are not killing a pest or pathogen, you are keeping in control the amount of pest and pathogen so that it does not harm the crop. समझ में आ रहा है? ठीक है, so whenever microbes की बात हो रही है, दिमाग में रखना, you're not killing them because they play an important role in the food chain as well. If I use a chemical and I kill a particular pathogen or a pest, I am disturbing the food chain and this is going to be causing a harm in a long run.
अभी पता नहीं चलेगा, but long run में it's going to cause the harm. So instead we would be using certain microbes. They would keep in control the pest and the pathogen, not kill them. ठीक है? So organic farming या फिर organic farmers की अगर बात करें, so they have the holistic approach. Organic farmers की अगर बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें, सो I'm sorry, organic farmers, not the farming. They have a holistic approach. They have a holistic approach. And what do they think is that the pests are kept at manageable amount. They're not killing it. Pest या फिर पैथोजन आर केप्ट एट मैनेजेबल अमाउंट, यू नॉट किलिंग इट. ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है? बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट. मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, मोर सस्टेनेबिलिटी, ये बात आपको पता होना चाहिए. More species diversity, more sustainability. ठीक है? Simple and easy. So if I'm eradicating a species, the sustainability is going to decrease. So this is the important point. इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, दे आर नॉट किलिंग दी ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट किलिंग दी पेस्ट और द पैथोजन, दे आर कीपिंग देम इन मैनेजेबल अमाउंट. आई होप आपको समझ में आ गया. लेट्स मूव अहेड. सो लेट्स टॉक अबाउट बायोहर्बिसाइड्स. लेट्स टॉक अबाउट द बायोहर्बिसाइड्स. बायोहर्बिसाइड्स क्या करेंगे? दे कंट्रोल द वीड्स और द हर्ब्स. बायोहर्बिसाइड क्या करेंगे? दे कंट्रोल वीड्स या फिर हर्ब्स. ठीक है? सो we have two categories of bioherbicides. One is mycoherbicides. Myco word आपको पता है, it's associated with fungus. So when I talk about mycoherbicide, I'll be talking about the fungus. A fungus helping to control the biocontrolling agents. Herbicide, and the second category is predator herbivores. So we would be using certain insects which would predate on the pest, ठीक है, or which would predate on the weeds or the herbs. So there is predator herbivores. Herbivores है, so they are going to be predating on the weeds and the herbs. ठीक है? So mycoherbicide and predator herbicide. So let's talk about the mycoherbicide first. So mycoherbicide आपको पता होना चाहिए. I will be talking about the fungus. ठीक है? So the first fungus I'll talk about is Phytophthora palmivora. Phytophthora palmivora.
So I'll put it here. Phytophthora palmivora, and it has to be underlined. ठीक है. अब ये जो फंगस है Phytophthora, this is H. Okay. It keeps a check or it controls the milkweed vines. किसको कंट्रोल कर रहा है? It is controlling milkweed vines. ठीक है. और कमर्शियली जब मार्केट में इस Phytophthora palmivora को मार्केट में जिस नाम से बेचा जा रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो द ट्रेड नेम जो उसका है, द ट्रेड नेम इज डिवाइन. सो इसके नाम से इस चीज को मार्केट में बेचा जा रहा है टू कंट्रोल द मिल्कवीड वाइन्स. एंड दिस मिल्कवीड वाइन्स दे अफेक्ट और दे आर फाउंड इन सिट्रस फील्ड. ये किसको हार्म करती है? सिट्रस फील्ड में हार्म कॉज करती है. ठीक है. तो Phytophthora palmivora नाम का जो फंगस है वो मिल्कवीड वाइन्स को कंट्रोल में रखेगा. ओके, बिकॉज मिल्कवीड वाइन्स किसको अफेक्ट करती है? सिट्रस फील्ड में जो सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको अफेक्ट करेगी. ठीक है. और मार्केट में डिवाइन नाम के अंडर पे इस चीज को बेचा जाता है. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट हर्बिसाइड. ये आपको याद रखना है. इट वॉज द फर्स्ट हर्बिसाइड ऑफ फंगल ओरिजिन. मैं लिख देता हूं फर्स्ट हर्बिसाइड. ठीक है. सेकेंड देखते हैं कोलेटोट्राइकम. कोलेटोट्राइकम कोलेटोट्राइकम ट्राइकम ग्लोकोस्पोइडस. ग्लोकोस्पोइडस. Coledotrichum glucosporidus. So this fungus, it is useful in treatment of or killing the northern wedgeweed. किसको मारता है ये? It kills or it keeps a control on northern wedgeweed. ठीक है. एंड नॉर्थन वेचवीड किसको अफेक्ट करता है? तो इट अफेक्ट्स राइस. ठीक है. इसलिए इसको कंट्रोल में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलेटोट्राइकम ग्लूकोस्पोइडस नाम के फंगस की मदद से. एंड जो ट्रेड नेम है इसका दैट इज कोलेगो. दैट इज कोलेगो. ठीक है. विच आर एक्चुअली द स्पोर्स ऑफ फंगस. ये है क्या एक्चुअल में? दिस आर स्पोर्स ऑफ फंगस. कोलेगो. ठीक है. दिस इज कोलेगो, दिस इज ड्वाइन, दिस इज Phytophthora palmivora, दिस इज कोलेटोट्राइकम ग्लूकोस्पोइडस. फिर एक सबसे भयंकर जो वीड है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ. द नेम ऑफ द वीड इज वाटर हाइसिंथ. अगर इसकी बात करें सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेडिंग
वीड, और इसको मारने के लिए वी हैव सर्कोस्पोरा रॉडमानी. वी हैव सर्कोस्पोरा रॉडमानी. ठीक है. सो सर्कोस्पोरा रॉडमानी किसको कंट्रोल कर रहा है? वाटर हाइसिंथ को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. सो दिस आर द 3 बायोहर्बिसाइड्स which are fungal based: Phytophthora palmivora, Colectotrichum glaucosporidus and Cercospora rhodmani. मिल्कवीड को कंट्रोल कर रहा है, नॉर्थन वेजवीड को कंट्रोल कर रहा है, एंड वाटर हाइसिंथ को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. वाटर हाइसिंथ का आपको नाम पता होगा, इट वाज आल्सो टर्म्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल. ठीक है. So now let's talk about the predator insects. Predator insects की बात कर लेते हैं. This was the fungus. Now predator insects की बात करेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को कंट्रोल में रखने के लिए, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में कैक्टस को कंट्रोल में रखने के लिए we have used insects. Those are predator insects. So ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को कंट्रोल में रखने के लिए there is a use of an insect known as Cactoblastis cactorum. Cactoblastis cactorum. It is the name of the insect. ठीक है. जो क्या करेगा? कैक्टस को कंट्रोल में रखेगा. It would feed on the cactus and would control the population of cactus. कौन? Cactoblastis cactorum. Second is USA में there is a weed known as the Klamath weed. It's a weed known as Klamath weed, which is also known as Hypericum perforatum. Hypericum perforatum. परफोरेटर. ठीक है. साइंटिफिक नेम है किसका? क्लैमथ वीड का. सो नाउ इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव बीन यूजिंग अ बीटल एंड द साइंटिफिक नेम इज क्राइसोलिना बीटल. क्या नाम है? क्राइसोलिना बीटल. क्राइसोलिना बीटल. ठीक है. देन there is another very fast growing grass known as the carrot grass. पार्थेनियम जिसे कहा जाता है. there is the carrot grass known as Parthenium. ठीक है. इसको कंट्रोल करने के लिए we have been using another beetle known as Zygogramma beetle. क्या नाम है उसका? Zygogramma beetle. Zygogramma beetle. Zygogramma
beetle. ठीक है? So these are some of the insects which are being used to kill the weeds. ठीक है? And by eating them, not killing them actually. Okay, killing is the wrong word. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि it controls. ठीक है? It is not eradicating it. So control करेंगे by feeding on them. So we have the Cactoblastis cactorum feeding on the cactus, Chrysolina beetle feeding on the klamath weed, which is scientifically termed as Hypericum perforatum, and we have Zygogramma beetle feeding on the carrot grass. So it would keep in control the growth of the carrot grass. ठीक है? So let's move ahead and talk about bioinsecticides. अब बायोइंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं. अब जो बायो इंसेक्टिसाइड्स है इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. बायो इंसेक्टिसाइड. ठीक है? सो देयर इज अ कैटेगरी. दे कैन बी बेस्ड ऑन प्रेडेटर इंसेक्ट्स. प्रेडेटर इंसेक्ट्स पे बेस्ड हो सकते हैं. या फिर बैक्टीरिया पे बेस्ड हो सकते हैं. या फिर वायरस पे, या फिर फंगाई पे. या फिर फंगाई. ठीक है? सो प्रेडेटर इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो वन ऑफ द कैटेगरीज विच इज वाइडली वर्किंग एज द पेस्ट, जिसका नाम है एफिड्स. क्या कहा जाता है? एफिड्स. ठीक है? सो एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए देयर इज लेडी बग बीटल. ठीक है? देयर इज द प्रेइंग मैंटिस, जिसको यूज कर सकते हैं. Then there is the dragonfly, and there is the hoverfly. So they can be used to control the population of aphids, not eradicating it. ठीक है? Then another one is mosquito. की बात कर लेते हैं. सो मॉस्किटो की अगर बात करें, सो मॉस्किटो के ऊपर फीड करने वाले देयर इज ड्रैगन फ्लाई, एंड देयर इज अ वेरी फेमस फिश विच फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो, दैट इज गंबूसिया. फिश है which feeds on the larva of मॉस्किटो. ठीक है? तो यहां पे ये सब क्या हो गया? ये प्रेडेटर इंसेक्ट्स है जो किसके ऊपर फीड कर रहे हैं? एफिड्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, मॉस्किटो के ऊपर फीड कर रहे हैं, और उनके पॉपुलेशन को क्या करेंगे? कंट्रोल्ड में रखेंगे. ठीक है? सो लेट्स मूव टू द अनदर कैटेगरी, दैट इज बैक्टीरिया. सो द फर्स्ट bioherbicide of bacterial origin is sporine. देखेंगे फर्स्ट bioherbicide of bacterial origin is sporine.
ठीक है। अब ये जो स्पोरीन है इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया बेसिलस thuringiensis। आपने नाम सुना होगा। It is prepared from Bacillus thuringiensis. ठीक है। और यूज क्या किया जाता है इसमें? तो इसमें जब बेसिलस thuringiensis स्पोरुलेशन करता है तो उस टाइम पे वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। यहां पे मैं लिखूंगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पोरुलेशन टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड। ड्यूरिंग स्पोरुलेशन टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये जो टॉक्सिन्स है, दिस टॉक्सिन्स व्हेन दे एंटर द गट ऑफ द इंसेक्ट, टॉक्सिन्स बिकम एक्टिव toxins become active when they enter the, मैं यहां लिखता हूं, यहाँ पे जगह नहीं, ऑलरेडी डाउन हियर। ठीक है। टॉक्सिन्स become active when they enter gut of insect. And now how is it possible? Active कैसे हो रहे हैं? So toxins become active when they enter the gut of the insect due to the presence of alkaline medium, due to the presence of alkaline conditions in the gut, due to the presence of alkaline conditions in gut। ठीक है। सो टॉक्सिन्स बिकम एक्टिव, मतलब यहाँ पे जब टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, वो क्या थे? इनएक्टिव फॉर्म में थे। वो एक्टिव कब होते हैं? सो टॉक्सिन्स बिकम एक्टिव व्हेन दे एंटर गट ऑफ इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन कंडीशंस इन द गट। ठीक है। और फिर क्या करेंगे टॉक्सिन्स? दे स्टिक टू द लाइनिंग ऑफ द गट एंड क्रिएट पोर्स। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे toxins stick to the wall of gut and create pores। ठीक है। तो जब गट की वॉल्स पे पोर्स हो जाएगी तो क्या होगा? जो पेस्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, द पेस्ट वुड डाई। ठीक है। तो जो स्पोरीन है, ये स्पोरीन एक्चुअली दिस आर अवेलेबल, जो पूरा मटेरियल है ना स्पोरुलेशन टॉक्सिन, दैट इज अवेलेबल इन दी पैकेट्स। ये आपको पैकेट फॉर्म में मिलेगा। कमर्शियली इसके पैकेट्स मिलेंगे आपको, सैचेट्स मिलेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? पैकेट में जो मिक्सचर उसको निकालना है, पानी में डालना है, मिक्स विद वाटर, एंड sprayed on plants। ठीक है। एंड
दिस इज यूजफुल इन किलिंग, एक जो स्पेसिफिक में पेस्ट का नाम लिखो, दैट इज दी कॉटन बॉलवॉर्म। किसको मारने के काम आता है? कॉटन बॉलवॉर्म को मारने के काम आता है। तो जो कॉटन बॉलवॉर्म से जो प्लांट्स इन्फेक्टेड होते हैं, उन प्लांट्स का अगर मैं नाम लिखूं, दोज आर ब्रासिका, पेस्ट, brassica plants, and there is another one that is the fruit trees. ठीक है, क्लियर है? सो मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? मैंने नाम लिख दिए प्लांट्स के, और कौन से पेस्ट को मारने का काम करता है? सो इट किल्स द कॉटन बॉलवॉर्म। यहां नाम लिखते हैं कॉटन बॉल, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो जो स्पोरिन नाम का फर्स्ट बैक्टीरियल ओरिजिन बायो हर्बिसाइड है, ओके, इट किल्स द कॉटन बॉलवॉर्म्स, ठीक है। तो कॉटन बॉलवॉर्म्स किसको इन्फेक्ट करते हैं? ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको मारने का काम करेगा। पैकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको सीधा पैकेट लेके उसको पानी में मिक्स कर देना और फिर आपको इन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है। तो जब ये टॉक्सिन्स पेस्ट के गट में जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अल्कलीन पीएच होता है, अल्कलीन कंडीशन होती है, और फिर उसके गट के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और जो गट की वॉल है उसको क्या कर देते हैं? पंचर कर देते हैं, उसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्पोरीन। Another category is viruses based. So I'll rub this down. Okay, so virus की अगर बात करें, so we have certain categories for viruses. That is we have nucleopolyhedrosis, nucleopolyhedrosis virus. Then there is cytoplasmic polyhedrosis virus, cytoplasmic virus, and then there is granulosa virus. So 3 categories are the. What is the difference? This is termed as NPV. They are normally termed as NPV. Then there is, this is CPV. Then there is GV. ठीक है? And GV. Now nucleopolyhedrosis virus की अगर बात करें, तो इसका why it is termed so, because इसका जो development होता है, the development takes place inside the nucleus of the host. The development of NPV takes place inside the nucleus of the host. Development takes place inside nucleus of host. ठीक है, this is that termed as of host. यहाँ पे the development of the virus, हाँ,
of virus takes place in cytoplasm of host. ठीक है. और जो लास्ट कैटेगरी है ग्रैनुलोसा वायरस, तो यहां पे क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द वायरस टेक्स प्लेस बोथ इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियस. तो लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ वायरस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस and साइटोप्लाज्म. ठीक है, दोनों जगह पे होगा. सो डेवलपमेंट ऑफ वायरस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है. सो मैंने आपको कैटेगरी बता दी, एनपीवी वायरस, सीपीवी वायरस एंड जीवी. ठीक है. सीपीवी का डेवलपमेंट होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. एनपीवी का न्यूक्लियस में, एंड जीवी का कहाँ होता है, इन दी साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस बोथ. ठीक है. सो नाउ there is a virus known as baculovirus, which is a NPV. Baculovirus है, which is used as a biocontrol agent to kill the caterpillars of butterfly. So we have a virus known as baculovirus, which is a NPV. It belongs to the category of NPV and it works as a biocontrol agent. It works as a biocontrol agent and keeps a control on the caterpillars of butterfly. It keeps a control or it kills caterpillar of butterfly. ठीक है. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वायरस के बारे में है कि यार वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू होस्ट. दे आर होस्ट स्पेसिफिक. ठीक है. सो होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा, जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है, अगर आप कैटरपिलर को मारना चाहते हो बटरफ्लाई के, तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर की ही डेथ होगी, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी. इसीलिए इट इज टर्म्ड एज होस्ट स्पेसिफिक. नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट अफेक्टेड. नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट affected. ठीक है. सो बिकॉज इट्स वेरी होस्ट स्पेसिफिक, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म कोई अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो इसकी जो एक्टिविटी है काफी नैरो हो जाएगी ना, बिकॉज वो सिर्फ एक पर्टिकुलर होस्ट को अफेक्ट कर रहा है. सो द एक्टिविटी ऑफ द वायरस बिकम्स वेरी नैरो. इसलिए दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी. दे हैव नैरो spectrum activity. They have narrow spectrum activity. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो प्रेडेटर इंसेक्ट्स देख लिया, बैक्टीरियाज देख लिए, वायरसेस देख लिया, फंगाई की बात कर लेते हैं. सो फंगाई में वी हैव वर्टिसिलियम एंड Beauveria.
verticillium, ठीक है, and Biburia. These are the two fungi. They are used as bioherbicide, or sorry, bioinsecticide. ठीक है. Now let's move ahead and talk about organic farming, जहाँ पे there is use of microbe based fertilizers. Organic farming based on microbe based fertilizers. Microbe based fertilizer. ठीक है. So तीन कैटेगरीज में माइक्रोब्स को डाल सकते हैं. दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी ब्लू ग्रीन algae, and fungi. And the fungi. ठीक है. So we know about a very common bacteria rhizobium, जो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. It performs nitrogen fixation. यहाँ पे मैं लिखूंगा. और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कौन सा होता है, सिम्बायोटिक होता है. क्या होता है, सिम्बायोटिक. सो आई पुट इट एज SNF, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इट forms a symbiotic relationship with the legumes. ठीक है. और जब वो symbiotic relationship बनाता है तो वो कहाँ रहता है, उनकी रूट्स में रहता है. और रूट्स में एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो रूट क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो जो लेग्यूम प्लांट्स है, अगर उसकी एग्जांपल लें, सो वी हैव पी, चना, सोया एंड बीन्स. पी, चना, सोया एंड बी. ठीक है. सो एक हो गया आपका राइजोबियम, विच इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है. किसके साथ, लेग्यूम्स के साथ, पी, चना, सोया, बीन. ठीक है. और क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है. सेकेंड बैक्टीरिया अगर आप देखो, दैट इज फ्रैंकिया. फ्रैंकिया के बारे में पहले भी बात करी थी शायद तक. अगर फ्रैंकिया की बात करते हैं, सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, नॉन लेग्यूम्स के साथ. ठीक है. और यहां पे भी क्या बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स. फ्रैंकिया इज एक्टिनोमाइसीट्स, आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस. एक्टिनोमाइसीट्स को बिलोंग करता है. ठीक है. अब यहाँ पे जो नॉन लिग्यूम्स प्लांट की अगर बात करें, सो दैट इज दोज प्लांट्स आर माइक्रिया, ठीक है. देन देयर इज आलनस, then there is Casuarina, then there is Ginkgo,
ठीक है, ये प्लांट्स है जिनके साथ फ्रैंकिया विच इज एन एक्टिनोमाइसीट्स क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है और नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, ठीक है। सो वी यूज इट एज अ बायो फर्टिलाइजर, बायो माइक्रोज बेस्ड फर्टिलाइजर इज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, नाउ ये जो तीनों तीन है, दिस आर एंजियोस्पर्म एंड दिस वन इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है, आपको पता होना चाहिए दिस जिम्नोस्पर्म एंड दिस इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो राइजोबियम और फ्रैंकिया की बात कर ली अपन ने, ठीक है, दैट इज दी फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी दूसरा एक देखते हैं, माइकोबैक्टीरियम, रब दिस टू। सो जो माइकोबैक्टीरियम है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, एसएनएफ है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। सो वी हैव माइकोबैक्टीरियम, लीफ नोड्यूल, नॉन लेग्यूम्स के साथ लीफ नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो प्लांट्स है यहाँ पे उनके नाम में लिख देता हूं, दैट इज आर्डेसिया, आर्डेसिया, ठीक है। देन देयर इज पैगाटा एंड देयर इज दी साइकोट्रिया, ठीक है, ये आप प्लांट्स हो गए, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम नॉन लेग्यूम्स के साथ लीफ नोड्यूल बनाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करेगा। सो द एग्जांपल्स आर आर्डेसिया, पेवाटा एंड साइकोट्रिया। तो ये सब क्या थे, सिम्बायोटिक थे। अभी मैं एक कैटेगरी डालता हूं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम लिखता हूं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन fixers, free living nitrogen fixers. So we have Azotobacter, we have Azotobacter, then there is Bergenkia, and there is Clostridium. ठीक है, सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में वी हैव एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये दोनों जो है ये एरोबिक है और ये जो है ऑक्सीजन को यूज नहीं करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है, एंड एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। नाउ सो मूविंग टू द बीजीए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें ब्लू ग्रीन algae की। सो ये एक रिलेशनशिप बनाता है एजोला के साथ। एक ब्लू ग्रीन algae की मैं बात करता हूं, दैट इज एनाबेना एजोले। This is a blue green algae, and this blue green algae, it forms a symbiotic relationship with the leaves of Azolla plant. Forms
symbiotic relationship with leaves of Azolla plant. ठीक है, Azolla is actually it's an aquatic fern. Azolla is an aquatic fern used in aquatic है ना, और क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, symbiotic nitrogen fixation SNF. So Azolla is an aquatic fern used in rice fields. It is used in rice fields. ठीक है, because it is fixing nitrogen. ठीक है, तो जो एनाबेना एजोला है, दैट इज अ ब्लू ग्रीन आल्गे, वो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है विद द लीव्स ऑफ एजोला प्लांट, एंड एजोला इज अ एक्वेटिक फूड. तो यहाँ पे क्या होगा, एजोला के साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा, ब्लू ग्रीन आल्गे मिलेगा, जो क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होगा, तो उसे यूज किया जाता है ओके इन दी राइस फील्ड, सो दैट राइस कैन गेट गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल टू इट. ठीक है, क्लियर. नाउ एक और देख लेते हैं, वी हैव एनाबेना साइकेडी. एनाबेना साइकेडी ये बनाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है इन साइकस एंड फॉर्म्स, रूट्स में रहता है. ठीक है, तो एंड फॉर्म्स कोरलॉइड्स, forms coralloid roots. Cycas forms coralloid roots, that means it stays in the roots. ठीक है, so Anabaena cycadi. ठीक है, so now some of the blue green algae which are, ये तो क्या था, symbiotic थे, free living nitrogen fixers अगर देखें FNF, some of the blue green algae which are free living nitrogen fixers free living नाइट्रोजन फिक्सर्स की अगर बात करें, so we have nostoc, there is nostoc, there is एनाबेना. एनाबेना क्या है, फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोटिक भी है. देन देयर इज सिलिंड्रोस्पर्मम, देन देयर इज सिलिंड्रोस्पर्मम, देन देयर इज टॉलीपोथ्रिक्स, ठीक है, एंड देयर इज एलुसीरा. ठीक है, जैसे मैंने बताया एजोला को राइस फील्ड में यूज करते हैं, तो जो एलोसीरा है इसको भी राइस फील्ड में यूज करते हैं, बट दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द इंडियन राइस फील्ड्स. इसको अपन यूज करते हैं
इंडियन राइस फील्ड, ज़्यादा अच्छा आउटकम मिलता है एलोसिरा को जब इंडियन राइस फील्ड में यूज़ करते हैं। और जो सिलेंड्रोस्पर्मम है, दिस इज यूज्ड इन मेज एंड शुगर केन फील्ड, मेज एंड शुगर केन फील्ड में सिलेंड्रोस्पर्मम को यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस आर द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाउ the good thing about blue green algae is ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटाट में क्या कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल में भी फिक्स कर सकता है। एक्वेटिक में N2 फिक्स करता है या CO2 को फिक्स करता है। एक्वेटिक में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है और यहां पे नॉन सिम्बायोटिक। क्लियर है? सो काफी ज्यादा एडवांस हो गया ब्लू ग्रीन आल्गे, बिकॉज एक्वेटिक में भी फिक्सेशन कर रहा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी कर रहा है, सिम्बायोटिक में भी कर रहा है, नॉन सिम्बायोटिक में भी कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंगस। तो फंगस का आपको पता है, इट फॉर्म्स symbiotic relationship with the roots of higher plants. Symbiotic relationship with roots of higher plants. They can be gymnosperm and they can be angiosperm, किसी के साथ भी। तो यहाँ पे जो चीज का फॉर्मेशन होता है, जो एसोसिएशन होता है फंगस का विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, दैट इज टर्म्ड एज माइकोरिजा। क्या कहा जाता है? माइकोरिजा। ठीक है, दिस माइकोरिजा could be developed on the outer side of the plant. So this is termed as ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza, or if it is on the inner side, so this is termed as endomycorrhiza. ठीक है, अगर बाहर की तरफ फॉर्म हुआ है तो आप एक्टो बोलोगे, अंदर की तरफ फॉर्म हुआ है तो आप एंडो बोलोगे। सो एग्जांपल्स आर पाइनस एंड ओक एग्जांपल में ले सकते हैं, और एंडोमाइकोरिजा के एग्जांपल में ले सकते हैं ऑर्किड्स एंड कॉफी। ऑर्किड्स एंड कॉफी। ठीक है, यहां पे जो सबसे फेमस एक एंडोमाइकोरिजा है दैट इज ग्लोमस। ग्लोमस का नाम आप याद रखो, ग्लोमस। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फंगल एसोसिएशन। यहां लिख देते हैं बेनिफिट्स। चलो, द बेनिफिट्स ऑफ फंगल एसोसिएशन। सो फर्स्ट इज फंगस फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। अभी तक आप जो देख रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हुई थी, नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन की बात हुई थी, बट फंगस डील विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। लिखेंगे एब्जॉर्ब्स फंगस फ्रॉम सॉइल।
ठीक है, देन it is resistant to root borne disease, resistant to root borne disease, ठीक है, and tolerance for salinity and drought. It possesses tolerance for drought, and it helps in increase of plant growth and development. Helps in increase of plant growth and development. ठीक है, so these are some of the benefits of the fungal association. कि एक तो वो कर रहा है, it absorbs, it helps in, fungus helps in absorptions of, not the fungus but the phosphorus. It helps in absorption of phosphorus. Helps in absorption of phosphorus from soil. It is resistant to root borne disease. ठीक है, वो प्लांट को क्या करेगा, जो रूट बॉर्न डिसीज होते हैं ना, उससे बचा के भी रखेगा. फिर it has tolerance for salinity and drought, and it also helps in increasing plant growth and development. ठीक है, so आज के लेक्चर में we have gone through very important topics. काफी सारा डिस्कशन हुआ है. ठीक है, we have talked about the blue green algae, we have talked about the bacteria, we have talked about the fungus. ठीक है, so make sure अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से सुनना और नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about more details regarding the chapter. Thank you so much.